Hello students. So today let us begin with geography. Chapter 1, our environment, grade 7. Now what does the term environment suggest? Can any one of you tell me? Okay, so let us see in detail what does environment exactly mean. Human beings and other living organisms live on the earth. The favorable conditions that make life possible on the earth form the environment. Land, water, air together with all the living organisms like plants and animals make up our environment. अभी हम अगर देखें तो ह्यूमन बींग्स है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सब एक साथ मिलके अर्थ पे रहते हैं. जो भी फेवरेबल कंडीशंस है जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ये सारी फेवरेबल कंडीशंस है जिसके वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. और ये सारी फेवरेबल कंडीशंस एक साथ मिलके एनवायरनमेंट कहलाती है. Land, water, air together with all the living organisms, plants and animals, environment बनाती है. An environment includes all the living and non-living things with which an organism may interact with. The term environment comes from the French word environ, which means to surround. Everything around us, for example things, places, nature, people, etc., comprises human-made and natural things. They all add up to our environment. एनवायरनमेंट में ज़रूरी नहीं है सारी लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है. जो भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट करती है तो वो पूरे प्रोसेस को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट एक फ्रेंच टर्म में से आया है जिसका मीनिंग एनवायरन होता है, विच मीन्स टू सराउंड. दैट मीन्स एवरीथिंग सराउंडिंग अस फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स, प्लेसेस, नेचर, पीपल एक्सेट्रा, जिसमें ह्यूमन मेड एंड नेचुरल थिंग्स दोनों इंक्लूडेड होती है. एंड ये सब एक साथ मिलके एनवायरनमेंट कहलाती है. सो अंडरलाइन दिस पार्ट, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन. ओके, मूविंग फर्दर. Our environment is made up of different components. These components can be classified into two broad categories: natural environment and human-made environment. Now, environment, as we all know, can be classified into two: natural environment. So, natural environment consists of atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere. ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे एक एक टर्मिनोलॉजी. इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है? हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, डैम्स, जो भी बनाई जाती है एनवायरनमेंट में. एंड अगर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन आर पार्ट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि उसमें भी इंटरेक्शन होता है. देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली, बिटवीन कम्युनिटी एंड बिटवीन रिलीजन्स. तो इसके वजह से उसको सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करते हैं हम. Now let us study natural environment in detail. All gifts of nature such as land, water, air, plant and animals form a part of natural environment. It includes biotic and abiotic components. Abiotic components consist of the non-living things like land, water, air, rocks, etc., while the biotic components consist of plants, animals which are living. For better understanding of the natural environment, we shall discuss the 4 domains of the earth. जो भी हमें नेचर से मिला है, all the gifts of nature, लैंड है, वाटर है, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वी कैन इंक्लूड टू थिंग्स: एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक कंपोनेंट्स वो है जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स गिनते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स. Biotic components में plants, animals which are living, that is living organisms forms part of biotic components and non-living organisms forms part of abiotic components. अभी इन सब के better understanding के लिए we will have to study 4 domains or realms of natural environment. 4 domains मतलब कौन से basis पे हम उनको divide कर सकते हैं. First is lithosphere. The lithosphere, outermost solid layer of the earth consisting of soil and rock materials, is called lithosphere.
It includes not only the land surface but also the ocean floor. The term lithosphere means rocky crust. The average thickness of the lithosphere is about 100 km. It has been found that the thickness of the Earth's crust is greater where the continents exist, that is about 38 km, as compared to the ocean floors about 8 km. The lithosphere is made up of various types of rocks and minerals. It has plateaus, mountains, plains, valleys, rivers, and oceans. So now going into the detail, lithosphere जो अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है जहाँ पे हम सॉइल एंड रॉक ढूंढ सकते हैं, हमें दिखते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर. रिमेंबर दिस डेफिनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक मटीरियल्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड सरफेस इंक्लूड हो, ओशन फ्लोर भी, ओशन में भी कहीं पे तो नीचे मिट्टी होगी ना, पानी के नीचे भी मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी को भी हम लिथोस्फीयर का ही पार्ट गिनते हैं. तो टर्म लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? रॉकी क्रस्ट. जो एवरेज लिथोस्फीयर की थिकनेस है वो अगर देखें तो 100 किलोमीटर्स कहीं देखने को मिलती है. और ये देखा जाता है कि ये थिकनेस जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी है, दैट इज़ अबाउट 32 किलोमीटर्स, और ओशन फ्लोर पे देखें तो वो थोड़ी कम है, दैट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर्स. लिथोस्फीयर में हम क्या कहते हैं, सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इंक्लूड कर सकते हैं. इट हैज़ ऑल्सो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड ओशंस. ये सारे हम लोग टोपोग्राफी में पढ़ चुके हैं. Lithosphere provides land for building houses, roads, factories, and also for agriculture. We also get various minerals from it. Lithosphere, we build houses, roads, factories, and we also do agriculture on lithosphere because it is the topmost layer of the soil. And we also sometimes get many minerals from it. Moving further, the next domain, hydrosphere. In lithosphere, we studied about land, and hydrosphere will study about water. The hydrosphere is that part of the Earth's surface which is covered by water. About 71% of the Earth's surface is covered with water. Hence, it is also regarded as watery plant. All the water bodies such as oceans, seas, lakes, rivers, bays, ice caps, glaciers, groundwater and fresh water together make up the hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हमें पानी देखने को मिलता है. अगर अर्थ की बात करें, अर्थ इज़ कवर्ड विद 70% ऑफ वाटर, इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. हेंस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वाटरी प्लैनेट. वाटर बॉडीज जितनी भी अर्थ पे वाटर बॉडीज है, दैट ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. From oceans, seas, lakes, rivers, bays, ice caps, glaciers, groundwater, fresh water, ये सब कुछ मिला के हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बनता है. Water supports all forms of life on the earth and is useful to us in number of ways. We all know कोई भी लाइफ फॉर्म को जीने के लिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. ह्यूमन्स के लिए भी इतना ही ज़रूरी है. इवन फॉर प्लांट्स सर्वाइवल इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर. अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो भी वो पानी उनको चाहिए रहने के लिए. एंड एरियल बर्ड्स की, मतलब बर्ड्स की बात करें तो उनको भी पानी चाहिए. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल थिंग फॉर us to survive. We use it in different ways, like fresh water. Apart from its domestic, agricultural and industrial use, it used to generate electricity. डोमेस्टिक फ्रेश वाटर की बात करें तो हम डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी फ्रेश वाटर ज़रूरी होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. शिप्स, क्रूज, वो सब काम पानी में चलते हैं, सो इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. ओशंस प्रोवाइड अस विद फूड्स एंड मिनरल्स. वी ऑल नो वाटर साइकिल. बारिश होती है, बारिश में से पानी जाता है ओशन में, वाटर बॉडीज़ में जाता है, वहाँ से वो एवापरेट होके क्लाउड्स फॉर्म करता है स्काई में. फिर जब क्लाउड्स एकदम डेंस हो जाते हैं, देन इट अगेन स्टार्ट्स रेनिंग. सो वी ऑल नो, तो अर्थ पे कंटिन्यूस सोर्स है वाटर का बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल. एंड जो ओशंस होते हैं, दे प्रोवाइड अस
foods and minerals which are necessary. We studied about two domains, that is lithosphere and hydrosphere. Lithosphere, that is land, hydrosphere, that is water. The third important is the atmosphere. The blanket of air that envelops the earth is called the atmosphere. जो एक एयर का ब्लैंकेट है जो अर्थ को एनवेलप की तरह कवर करता है, that is called atmosphere. Remember this, it is very important. Its exact thickness is unknown, but we considered it up to 1600 km from the surface of the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. ब्लैंकेट हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो ब्लैंकेट कितना थिक है, बट हम कंसिडर करते हैं कि प्रॉबेबली इट इज़ 1600 किलोमीटर्स थिक एंड इट इज़ फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये ब्लैंकेट को पूरा एक साथ ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को अपने आसपास बांध के रखता है. Remember this composition as well, it is very important. Mixture of air of many gases such as nitrogen, that is 78%, oxygen 21%, and the rest 1% includes substances like argon, carbon dioxide, water vapor, dust and smoke particles. ये composition आपको पूछ सकते हैं. नाइट्रोजन 78% मिलता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी का 1% बचता है उसमें वी गेट आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, एवरीथिंग. अगर 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी 1% में उसके फर्दर डिवीजन में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो थोड़ा बढ़ता है तो आप सोचो अर्थ को कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है, और उसका रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग एंड होल एंड ओजोन लेयर. The atmosphere prevents the sun's harmful rays from reaching the earth's surface. It controls the temperature during day and night. It also controls pressure, humidity and sunshine. Therefore, the changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Without atmosphere, our earth would have been barren like other planets. अर्थ जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के आसपास जो एनवेलप है, वो सन के डायरेक्ट रेज जो अर्थ पे फॉल होते हैं उसको प्रिवेंट करता है. वो हार्मफुल रेज होते हैं तो वो अर्थ पे नहीं आने देता. उसके वजह से टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है जो रात और दिन का होता है. फिर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, वो सब भी अर्थ के एनवेलप के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है. अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं जिसके वजह से वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंज आते रहते हैं. पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स पे कोई लाइफ नहीं है, बैरन लैंड है, मतलब सूखी ज़मीन है, वैसे ही अर्थ का भी शायद वही हाल होता. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 3 मेन डोमेन्स: lithosphere, hydrosphere, atmosphere. The very important domain will continue with in the next class, but before that let's solve this multiple choice questions. About dash% of the earth's surface is covered with water. Yes, it is 71%. The atmosphere is held to the earth by the force of, yes, it is gravity. We'll continue with the biosphere in the next class. Thank you.